At the same time, you think that there are some mistakes that you are making, but due to which mistakes you do not sound confident. This is the only reason. This is the one reason that is taking your life. You know why? Because you are not confident about your spoken English. And how to be confident? सोचो पूरी लाइफ भर तुम इस चीज़ का रिग्रेट फील करोगे और एक दिन तुम मर जाओगे तब तक तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैंने पूरी जिंदगी इंग्लिश सीखनी चाहिए और मेरी पूरी जिंदगी चली गई लेकिन मैं हिंदी से इंग्लिश पे मूव नहीं कर पाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अनुराग तिवारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इनसाइट एकेडमी इंग्लिश। सो आई होप कि आप सब दुरुस्त तंदुरुस्त और एकदम मस्त हो। आज की वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इंग्लिश बोलने के डर को कैसे दूर करें। ओके, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ व्हाट इज़ द फियर? सबसे पहले देखते हैं डर है क्या वो, जिस डर की आप बात करते चले आ रहे हो काफ़ी टाइम से, सालों साल से, कई लोगों को देख के, कई लोगों को समझ के कि भाई इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी डर है, हम बोलेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस डर को दूर कैसे करना है? How to be confident in terms of speaking English. How to be confident while speaking English. This topic is very important and it is related to everyone. So make sure to watch the video till the very end so that you can get all and everything. You know, you don't know that what is the point, what is that one point that is going to hit you in order to make you the better version of yourself. Nobody knows about this. So to know this today, you are going to watch this whole video and you don't know that which one of the lines of my can really react with you. So let's get started and let me start the video. Again, let me remind you, this video is only all about how to overcome fear of spoken English. While speaking English, how to get rid of fear. Let's start. तो दोस्तों देखो, डर है क्या? सबसे पहली बात तो डर है क्या? दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एट द सेम टाइम आई विल स्पीक हिंदी। तो सबसे पहले देखो, डर है क्या? डर एक्चुअल में डर का मतलब क्या है? देखो, डरते कब हो पता है? आप समझ लो कि आपके पापा ने जब आपको लास्ट टाइम मारा था, आपकी मम्मी ने आपको लास्ट टाइम मारा था, तो क्यों मारा होगा? आप उनसे क्यों डरे होगे? मार खाने से पहले डरे होगे। अगर आपने कोई गलती करी होगी तो आप डरे होगे, 100% डरे होगे। मीन्स डरने का सीधा रिलेशन किससे? गलती से। जब आप गलती करते हो तो आप डरते हो ना? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, तो क्या आपको इंग्लिश बोलने से पहले वो इंग्लिश का जो सेंटेंस बना रहे हो, क्या उस सेंटेंस के लिए एश्योरेंस है दैट यू आर मेकिंग दैट सेंटेंस 100% करेक्टली? दिस इज द मेन point behind your fear. Why are you getting scared? You are just getting scared because you are not pretty sure about your sentence, that the sentence that you have made it correct or incorrect. You might have done grammatical mistake, you might have made something like that you are not aware of, but you at the same time you think that there are some mistakes that you are making, but due to which mistakes you do not sound confident. This is the only reason, this is the one reason that is taking your life. You know why? Because you are not confident about your spoken English. And how to be confident? In order to be confident, you need to be pretty sure about the fact that you are speaking correctly, you are not making any kind of mistakes, and if you are making silly mistakes, so silly mistakes is acceptable. You need to accept this fact. I have been talking for this particular point for a very long time in my all videos. I really raise this point. You know, होता क्या है कि आप जब गलत बोलते हो, आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप इसी में फंस जाते हो, तो फिर आप बोलना ही बंद कर देते हो। आप बोलना चाहते हो नहीं, आपको तो सामने वाला सोचेगा मैं भाई मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई, हाँ या ना? कितनी सारी वीडियो मैंने अब डाल रखी है चैनल पे, कितनी बार मैंने इंग्लिश बोली होगी, क्या 100% मैंने सही बोली होगी? आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। आप जाओ लिख दो भाई इसको तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, इंग्लिश सही से नहीं बोल रहा, गलत कर रहा। भाई इट्स अ लैंग्वेज। हाँ, मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कम से कम मिस्टेक करूँ, आप भी वही कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम मिस्टेक करें, बट यू कांट बी प्रेटी श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग अ सिंगल मिस्टेक। इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव यार, you will be fail to do it. So you need to realize the fact that unless you feel confident, if you really want to feel confident, you need to be totally grammatically correct. And when I say totally, it does not mean 100%. It means only 80 to 85%. You must have knowledge of structures, the tenses and the modals and all the structures, where to use this, where to use that, where to use those. समझ में आ रहा बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डरते हो इंग्लिश बोलने से, इसलिए डरते हो क्योंकि आपको डर लगता है कहीं आपसे गलत इंग्लिश ना निकल जाए। क्या सच में यही रीज़न नहीं है? सपोज करो, क्या आप हिंदी बोलने से डरते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। बट इंग्लिश में क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते तो हो कि जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट एक्चुअल में जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं बोल रहे हो, और जिसकी वजह से आप फिर चुप हो जाते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको डरना नहीं चाहिए। अब डर को ख़त्म कैसे करना है? कुछ नहीं करना है डर को ख़त्म करने के लिए। डर को ख़त्म करने के लिए आपकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी चैप्टर्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस तो अपने आप बन जाएगा भाई। आपके पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम विमल कुमार तिवारी है। फट से मैंने बताया आपको फटाक से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा का नाम है। अब मुझे अगर नहीं पता होता कि मेरे पापा का क्या नाम है, फिर मैं एक बार को हिचकिचाता ना। अब सोचो, आप मेरे से पूछो आपके दादा के दादा के दादा का क्या नाम है? ओ यार,
राम स्वरूप कुछ भी ऐसी होगा XYZ। तो अब क्या हुआ, मैंने सोचा और मैं डर रहा हूँ अंदर ही अंदर कि भाई मैं क्या बोलूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। तो पॉइंट ये है कि जब आपकी नॉलेज 100% सॉलिड होती है तो आप डरते नहीं हो। बट इन केस you are not 100% solid about your knowledge, you don't have the clearance about your knowledge that whatever you have studied it is correct, whatever you are going to speak it's totally correct, तब तक आप नहीं बोल पाते हो। आप सोचते हो कि मैं गलत बोलने जा रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझे कुछ कहेंगे, मुझे गलत सलत कहेंगे। यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ दैट। आप देख रहे हो वीडियो बना रहा हूँ, हाँ पसीना देख रहे हो, दिखाता हूँ पसीना, दिस इज़ कॉल्ड पसीना, दिखा ना। अब लोग क्या कहेंगे, मैं ये सोचूं कि मैं अपना कंटेंट बनाऊं, ये सोचूं। कंटेंट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहली बात तो आपको बोलने से डरना नहीं है। इन केस अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो बोलो यार, आप बोलना सीखना चाहते हो, सोचो पूरी लाइफ भर तुम इस चीज़ का रिग्रेट फील करोगे और एक दिन तुम मर जाओगे तब तक तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी इंग्लिश सीखनी चाहिए और मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई लेकिन मैं हिंदी से इंग्लिश पे मूव नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं लोगों की वजह से डर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये मैटर तो करता है, बट ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये आपके लिए मैटर करने लग गया है। ठीक है, सबसे पहले आप इंग्लिश को फिर से अच्छे से पढ़ना शुरू करो, रूल्स को समझना शुरू करो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ है ही नहीं यार। एक बार जब आप अच्छे से रूल समझ जाओगे ना और ट्रांसलेट करना सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 75% कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर ऐसे ही आ जाएगा कि यार हाँ मुझे किसी भी चीज़ की इंग्लिश आती तो है, बस अब मुझे उसे रिप्रेजेंट करना, बस मुझे उसे बोलना, बस मुझे अब दिखाना है लोगों को वो। तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लाइक गेट rid ऑफ दिस फियर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की नॉलेज का मतलब ये है कि ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेट कर पाओ। अगर आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको टेंसेज, मोडाल्स या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स है उनकी अच्छे से आपके पकड़ नहीं होगी तो आप सेंटेंस गलत बनाओगे। आप बोलोगे तो सही, फिर आप सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद बोलना ही नहीं चाहोगे, फिर आप चुप हो जाओगे, शर्माओगे, भागोगे, उस माहौल से दूर जाओगे। बट आपको एक्चुअली उस माहौल से दूर नहीं जाना है, बल्कि आपको उस माहौल में ही रहना है और उस माहौल का आपको सामना करना है, एंड यू नो इट वेरी वेल। समझ रहे हो ना। तो आपको करना क्या है कि एक्चुअल में सही से पढ़ना है। आप पढ़ना चाह नहीं रहे हो, बहुत टाइम से आप पढ़ नहीं रहे हो, इसकी वजह से आप ऐसे हो। अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं होता। और आज फिर से मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, आई विल कीप मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज इन विच आई विल कीप रिमाइंडिंग यू ऑल दैट यू नीड टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड टुडे देन यू विल स्टार्ट इट टुमारो, आई बेट यू। तो यही था मेरा मतलब इस वीडियो में, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपने आज पढ़ना या पढ़ाना नहीं शुरू किया इंग्लिश को तो प्लीज़ शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके पास डर है इंग्लिश बोलने का, आपको डरने की तो कोई पहली बात ज़रूरत ही नहीं है। कौन लोग आपको जानते हैं? कितने लोग मेरी वीडियो देख लेंगे? बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। कितने लोग जानते हैं मुझे? कौन सी बेइज्जती? बताओ ना, किस बात की बेइज्जती? सोचो कितने सारे टीचर्स पढ़े हैं, कितने सारे टीचर्स हैं इंग्लिश के, सोचो हर एक सब्जेक्ट के, सोच लो ना। तो आपको डरने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब रही बात, आप डरते तभी हो जब आपकी नॉलेज सिक्योर नहीं होती, आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है। सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को कंप्लीट करिए। एक बार आपकी नॉलेज अगर कंप्लीट होगी, आपके अंदर का डर अपने आप चला जाएगा। ठीक है, क्या आपको ट्रिगर हुआ वो पॉइंट? क्या मैंने आपका हिट किया? अगर किया तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं किया तो भी बताइए। बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तैयारियाँ चल रही हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट रेगुलर ऑन द चैनल। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इनसाइट अकेडमी इंग्लिश को। माय नेम इज़ अनुराग तिवारी, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझ लो। एंड आई एम ऑल्सो जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। आई एम जस्ट न्यू इन दिस यू कैन से फील्ड। So whatever I can do, I am doing. Whatever I could be able to do, I will do that. And I don't know what is going to help, what is going to happen, what's going to really emerge into you, into me. But there will be something. I am pretty sure about that. I will keep working on myself. I will keep uploading videos. I will keep guiding you. I will keep assisting you. I will keep making you all laugh. I will keep making you realize that what is the importance of English. I will keep making such kind of videos which will make you feel the importance of English. And due to all those videos, एक दिन तो आप सोचोगे अबे भाई कितनी वीडियो डालता है बंदा, इंग्लिश 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 है क्या इंग्लिश? शायद उस दिन आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। सो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और आपका प्यारा अनुराग तिवारी।